السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولنا بیٹا. یہ ہو جائے نا ابھی نہیں ابھی تو چلو ابھی چلو. شریک کرنا اور سنی سکھا جانا بول کے اور وہاں پر اس کو کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، آپ تمام لوگوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہمارا قومی تہوار ہے اور اس قومی تہوار کو منانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کا فرض ہے. ہم وطن کے باشندے ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تہوار کو بھی منائیں. جس طرح ہم اپنے مذہبی تہواروں کو بہت ہی جوش اور خروش کے ساتھ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے اور دیگر تہواروں کو ہم بہت ہی جوش اور خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اسی طرح ہم اس قومی تہوار کو بھی بہت جوش اور خروش کے ساتھ منانا چاہیے. یہ دو ہمارے قومی تہوار ہے، ایک 15 اگست یوم آزادی اور ایک 26 جنوری یوم جمہوریہ. یہ دونوں جو تہوار ہیں یہ ہمارے قومی تہوار ہیں اور اس قومی تہواروں کو بھی ہمیں اتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ منانا چاہیے. اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح محنت اور کوشش کر کے ظالم حکمرانوں سے ہمارے ملک کو آزاد کرایا، اور انہیں کی یاد میں ہم جو ہے یہ 15 اگست اور 26 جنوری کو ایک قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں. تو آئیے، چونکہ وقت ہمارے پاس کے میں اور بھی بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں، تو آئیے اس مبارک گھڑی کی جو ہے شروعات ہم اس رب العالمین کے نام سے کرتے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے. زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، سارے مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوا ہے، ساری تقدیر کے فیصلے اسی کے ہاتھوں میں ہیں. تو میں آواز دوں گا عبد الرحمن کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک سے ہماری اس میٹنگ کا اور اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کریں. عبد الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری اور بہت ہی مترنم آواز کے اندر عبد الرحمن آپ کو قرآن کی تلاوت پاک سے ہم سب کے کانوں کو مزین کر رہے تھے. آئیے اب میں مدنی ہائی اسکول کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو یوم آزادی کی بہت بہت اور خلوص مبارکباد دیتا ہوں. میں نے اس پی پی ٹی کے ذریعے آپ کو مبارکباد دینے کی کوشش کی ہے. السلام علیکم سر. جی.
बदनी हाई स्कूल की जानिब से आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून और शांति रहे। हमारा ये मुल्क दूसरे तमाम ममालिक के मुकाबले ज़्यादा तरक्की करे। यहाँ आपस में लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक और भाईचारगी के साथ रहे, और मुल्क के अंदर और पूरे आलमी तौर पर जो वबाई मर्ज फैला हुआ है, हम तमाम लोग अपनी दुआ के ज़रिए से इस वबाई अमराज से, अल्लाह से इस वबाई अमराज की हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं। ठीक है, तो आप तमाम लोगों को ये यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आज के दिन जो है हमारा मुल्क गुलामों की जंजीरों से जो जकड़ा हुआ था वो आज़ाद हुआ, हम अल्लाह के सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस वबाई अमराज से जल्द अज जल्द जो है आज़ादी नसीब फरमाए। ठीक है, अब मैं तमाम पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, और राष्ट्रगीत जो है अभी होगा, और उस राष्ट्रगीत को जो है आप ध्यान और तवज्जो के साथ सुनेंगे। ठीक है, राष्ट्रगीत होगा। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ। आप तमाम पेरेंट्स का, आप तमाम बच्चों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस यौम आज़ादी के पहली मरतबा के ऑनलाइन सेलिब्रेशन को बहुत ही अच्छे अंदाज में मनाया। अब अजीज़ तलबा और तालिबात और तमाम वालिदैन, मैं चाहूँ कि वालिदैन भी कैमरे में आ जाए, वो भी हमारे साथ में शरीक रहें। आइए, इस मुबारक दिन में हमें बहुत सारे बातों का अज़ाइम करना है, बहुत सारे बातों की जो है वो याद दहानी भी करनी है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इस दिन को जो हम शहीदों की कुर्बानी के तौर पर मनाएं, हम अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को फरामोश ना करें, लेकिन उसके साथ साथ आज की इस दिन हम ये अज़ाइम करें, ये इरादे करें कि जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी है, हम भी जो है इन अपने आप को वतन के लिए कुर्बान करने के लिए जज्बे हमारे अंदर भी फराहम हो। लेकिन ये जज्बे उस वक्त कारआमद साबित होंगे जब हमारे अंदर वतन के ताल्लुक से कुछ करने का जज्बा होगा। और वतन को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नौजवान नस्लों की है, और हमारे तलबा जो है वो अनकरीब अब इस नौजवानी की दहलीज पे कदम रखने वाले हैं। आज नौजवान जिस मुल्क का तबका, नौजवान तबका जो है जिस तरफ चल पड़ता है, मुल्क भी उस तरफ चल पड़ता है। आज आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारा मुल्क और पूरे आलम एतबार से पूरी दुनिया में जो है वो एक वबाई मर्ज जो है वो फैला हुआ है। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो वबाई मर्ज से हम सब लोग जो है उससे छुटकारा नसीब हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे सामने बनकर आ रहा है, और इससे हर कोई जो है मुतासिर है। इससे हमारी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है,
اسی لیے گورنمنٹ نے جو ہے کچھ سلیبس کی تخفیف کی ہے، اس کو حذف کیا ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا ہے ہماری سہولت کے لیے، تاکہ جو پڑھائی کا جو نقصان ہے اس کو کتنی حد تک جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کے ذریعے بھی کلاسز کی جا رہی ہے، پڑھائی کی جا رہی ہے، لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ بچوں کی آدھے سے زیادہ جو ہے 50% بچے اکثر غیر حاضر ہے، تو ان کے ساتھ بے شمار مسائل ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس وبائی امراض نے جو ہے وہ ہر ایک کی کمر کو توڑ دیا، ہر ایک اس سے متاثر ہوا، معاشی اعتبار سے بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان تمام کا حالات کا ہم کو سامنا کرنا ہے، ان تمام کو ہم کو فیس کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ تو اس میٹنگ کے ذریعے میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی حاضری پر توجہ دیں۔ ہم نے اپنے اوقات کو بہت پہلے ہی جون کے دوسرے ہفتے میں ہی ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیے تھے کہ کس طرح آن لائن کی پڑھائی ہوگی، کتنے پیریڈ ہوں گے اور کتنا پیریڈ کتنے وقت کے لیے ہوگا۔ لیکن عزیز پیرنٹس جو آ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں وہ بھی جو ہے ہماری اس میٹنگ کا حصہ بنے، ہماری اس آن لائن تدریس کا جو حصہ بنے، تاکہ ہماری پڑھائی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ بے شمار مسائل ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن اتنی بھی مجبوری نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم جیسے زیور سے دور رکھیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ تعلیمی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک اور اپنی قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس آن لائن تدریس کے جو اوقات ہے اس کی ہم کو پاسداری کرنا ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ اس لیے جو بچے ابھی اس آن لائن تدریس سے ابھی تک کے اٹیچ نہیں ہوئے ہیں، میں آج کے اس یوم آزادی کے موقع پر ان سے پھر درخواست کروں گا کہ وہ ہماری اس آن لائن تدریس کا حصہ بنے، تاکہ ان کی پڑھائی کا جو نقصان ہو اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ صرف ہماری اسکول نہیں بلکہ تمام اسکولوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے۔ ہر قسم کی سختی بھی اختیار کی گئی، لیکن جو ہے وہ بچے آن لائن تدریس سے پتہ نہیں کیوں جی چرا رہے ہیں، حالانکہ تمام اساتذہ اور تمام ٹیچرز جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے اس پڑھائی کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کمر بستہ ہو چکے ہیں، اور مختلف ویڈیو کے ذریعے، مختلف پی پی ٹی کے ذریعے اور مختلف اپنے خود کے ذاتی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ پڑھائی کی طرف آپ لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ لیکن جانیے جتنا جو فیس ٹو فیس پڑھانے میں جتنی محنت صرف ہوتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ محنت ٹیچرز کو آن لائن تدریس میں کرنی پڑ رہی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی اہمیت سے بھی اب تک واقف نہیں ہوئے۔ اس لیے آپ تمام پیرنٹس جو ابھی یہاں پر موجود ہیں ان سے میں پھر ایک مرتبہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طرح بچوں کو راغب کرائیں، ان کی نگرانی کریں، بچوں کو آن لائن تعلیم میں راغب کرے، ان کے لیے ایسا ماحول مہیا کرے کہ جہاں پر وہ یکسوئی کے ساتھ میں تعلیم حاصل کرے۔ بعض مرتبہ بچے جو ہے وہ ایسے ماحول کے اندر آن لائن تدریس حاصل کر رہے کہ گھروں میں بے شمار شور بھی ہے، اور بہت سارے مطلب بتانا یہاں مناسب نہیں ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تدریس کے دوران، پڑھائی کے دوران ہم لوگ گھر میں کچھ سکون اور شانتی قائم رکھیں۔ گھر کی ساری آوازیں اور ڈسٹربنس جو ہے وہ ہماری اور بچے کی تدریس کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے یہ 2 گھنٹے کا جو وقت ہے، 2-2.5 گھنٹے کا جو وقت ہم لوگوں نے طے کیا ہوا ہے، 40-40 منٹ کی جو 3 پیریڈ روزانہ ہوتے ہیں، کم سے کم ان اوقات میں ہم بچوں کے لیے ایک سازگار ماحول اپنے گھر میں ہی فراہم کریں۔ بعض مرتبہ بچے آن لائن تعلیم کے اندر جو ہے وہ بہت ہی بے دلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے کیمرے آن نہیں ہوتے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیمرے کے پیچھے۔ لگ تو رہا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ میٹنگ میں حاضر ہے، لیکن وہ میٹنگ میں حاضر نہیں ہوتے، وہ کیمرہ آن آف کر کے جو ہے اپنی فضا۔ تو اس لیے آپ ان کی نگرانی کریں، چونکہ ہمارے بچے 10ویں میں پہنچ چکے ہیں، بورڈ کا ایگزام ہے، یہ چھوٹی کلاس نہیں ہے کہ چلو پروموٹ کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے بورڈ کے ایگزام ہونا ہے، اور آپ اچھی طرح واقف ہے بورڈ کے ایگزام سے، اور 10ویں کا رزلٹ جو ہے وہ بچے کی زندگی کو بننے، سجنے اور سنورنے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کی آن لائن تدریس میں آپ کی نگرانی ہو، آپ کی نگرانی میں بچے جو ہے وہ
तालीम हासिल करें, उनको वक्त के मुकर्रर पर उनको जगह देवे या उनके लिए सारे चीज़ें मुहैया करा दें और वक्त से पहले उनको स्क्रीन पे जो भी है या तो मोबाइल की स्क्रीन है या टैब है या लैपटॉप है उनको वहाँ तक पहुँचा। अगर आपके पास में कोई ऐसे ज़राए नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आस पड़ोस में या जहाँ उनका कोई दोस्त है उसके पास अपने बच्चे को भेजकर ताकि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, ये बात करनी थी। और दूसरी बात ये है कि चूँकि अब एग्ज़ामात के दौर भी शुरू हो चुका है, अगर हमारे स्कूल वक्त पर फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा होता है और बाज़ स्कूलों के अंदर ये हो भी चुका है, तो आप लोगों से अभी मुझे राय भी लेनी है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाए। ये आपसे मशवरा भी लेना है। बेशुमार तरीके राइज है ऑनलाइन एग्ज़ाम करने के लिए। जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं गूगल फॉर्म के ज़रिए मुख्तलिफ टेस्ट ले रहा हूँ, मुख्तलिफ असाइनमेंट उनको दे रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। एक तरीका जो आम स्कूलों के अंदर राइज है कि बच्चे बैठे हुए हैं और सामने मतलब कैमरे की सेटिंग ऐसी है कि पूरा कैमरा दिख रहा है, बच्चा मतलब मसला है थोड़ा सा यहाँ पर। खैर ये सारे मसाइल से आप लोग भी जूझ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम का ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि बच्चे असाइनमेंट करें, उसकी कॉपी जो है फ़ौरन वो क्लिक करें और व्हाट्सएप पर उसको शेयर कर दें और जब स्कूलें खुल जाएंगी तो फिर वो उसकी जो हार्ड कॉपी है वो और सॉफ्ट कॉपी दोनों कॉपी को मिलाकर कहीं उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, ये भी एक एग्ज़ाम लेने का तरीका है। तो अब आप लोगों से मुख्तसर तौर पर ये राय लेनी है कि कैसा एग्ज़ाम किसे कंडक्ट किया जाए। तो बराए मेहरबानी आप जो है अपने माइक को जो है अभी ऑन कर ले और मुख्तसर और जामी अंदाज में आप अपनी राय से हमें रोशनास कराएं कि क्या एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट किया जाए। और दूसरा फिर सवाल इसका ये रहेगा कि क्या आप लोग जब भी ऑनलाइन तदरीस हो रही है क्या आप उससे सेटिस्फाई है, मुतमईन है और उसके फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं अपने बच्चों पर। तो खैर पहले तो ये चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरह हम जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। जी मैं आपके राय का मुंतज़िर हूँ। बोलो। जी बताइए, आप कैमरा ऑन करें और माइक भी ऑन करें क्योंकि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ टीचर्स की मीटिंग है। जी या तो फिर मैं यहाँ से एक एक को आवाज़ दूँ और वो अपनी राय दे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम लोग यहाँ मशवरे के लिए बैठे हैं और मशवरे में खैर है। ठीक है, आपकी राय हमारे लिए अमानत है इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए मैं फिर एक एक को आवाज़ दूंगा ताकि आसानी हो। अयान के वालिद 10 मिनट का वक्त बचा है, देखिए जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। यहाँ पर जूम मीटिंग में 40 मिनट का वक्त होता है, 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है, जरा जल्दी जल्दी। अयान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं मोहम्मद रफ़ीक बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, बोल रहे। जी, मेरी राय ये है कि रूबरू एग्ज़ाम हो, मतलब जैसे कि सामने सवाल पूछे और सामने ही जवाब हो जाए, तो ये बच्चे के लिए भी मुफीद है और आप लोग के लिए भी, क्योंकि उसमें कॉपी करने का कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। तो ये तो मतलब एक वर्बली एग्जाम हो जाएगा अगर हम सवाल पूछे। लेकिन उसमें तो फ़ायदा ये होगा ना कि बच्चे को याद है या नहीं याद है, वो हाज़िर जवाब होगा। बेहतर रहा है क्योंकि अभी जैसे माशाल्लाह। इतनी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप अगर कोई सम वगैरह या कुछ भेजते हैं, तो वो थोड़ा कॉपी करने के लिए टाइम मिल जाता है। जैसे आज सुबह का ही हुआ होगा, आपने देखे होंगे कि शफीक को काफ़ी चीज़ें, जैसे आपने 6:45 पे जो क्विज़ डाले थे, तो उसने आपको 1 घंटे के अंदर भेज दिया, तो उसमें उसको खुद उसको रिज़ल्ट मिल गया कि इसमें इतनी चीज़ें गलत है और इतना ये है। तो ऐसे कम टाइम के पीरियड्स में होगा, क्योंकि देखो आज की तारीख में हमारे पास जो फ़ोन मौजूद है वो स्मार्टफ़ोन है। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं मालूम है वो स्मार्टफ़ोन हमको बता देता है शॉर्ट टाइम के अंदर। तो हम भी अगर जो पेपर शॉर्ट टाइम में देंगे, मतलब जैसे आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट, तो इतना कॉपी करने टाइम नहीं मिलेगा।
और उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाले ने कितना लिखा है और कितना। बेहतर जी, अच्छी राय माशाल्लाह और शफीक भाई की दूसरा राय। जी, रफीक नाम है मेरा, रफीक। रफीक भाई शफीक के वालिद रफीक भाई। जी। और किसी की राय? और अच्छी राय। और जो मुख्तसर, क्योंकि अभी 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है, मुख्तसर और जामे अंदाज में आप अपनी राय पेश करें, क्योंकि ये जूम मीटिंग का वक्त 40 मिनट का होता है। और कोई जल्दी, मैंने मीटिंग के नुकात आपको दे दिया था ग्रुप पर। अब्दुल रहमान, आपकी वालिदा कुछ कहना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चे नहीं आ सकते ऑनलाइन, तो आप एग्जाम कैसे ले सकते हैं? हाँ, ये मसाइल तो सबके सामने, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को हमको भी एक मतलब आंसर की कॉपी कुछ देनी है कि हाँ एग्जाम कंडक्ट हुआ है। आप अपना माइक, अपना कैमरा ऑन कर दें ताकि रिकॉर्डिंग में हमको भी लगे कि हाँ हमारे मर्द के साथ साथ औरतें भी माशाल्लाह वो अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। अगर कुछ मुजायका ना हो तो पर्दे के एहतमाम के साथ। जी, वीडियो बंद कर। जी जी सर, हाँ, बताइए ना क्या बोल रहे थे आप। मैं वही बोल रही हूँ कि सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं बैठ सकते, तो आप एग्जाम लेने में दिक्कत तो नहीं होंगी? नहीं, असल में 50% बच्चे तो आ रहे हैं। अब जो नहीं हम्म। है तो अब उनका तो क्या किया जाए, उनको तो फ़ोन करके, मैंने आपको पता है कि कई मतलब मैंने फ़ोन किया हूँ पर्सनली, और उनको मीटिंग में आने के लिए और ऑनलाइन तदरीस के लिए मैंने उनको हर तरह से आमादा किया। लेकिन बाज़ बच्चे जो है वो वतन चले गए और वहाँ पर नेटवर्क का मसला है, जैसे कि बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई और वहाँ पर नेटवर्क का मसला है, या और बहुत सारे मसाइल होंगे। तो कम से कम जो बच्चे आ रहे हैं अच्छा उनका तो हमको नुकसान नहीं करना है, उनका तो कम से कम हम एग्ज़ाम ले लें। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो सही बात है, जो अभी शफीक भाई उनके पेरेंट्स ने जो बोले हैं वो भी बराबर है जो आप उन्होंने बोले। बहुत अच्छी रहे माशाल्लाह। और हाँ सोहेल भाई सर। बोल जी। हाँ, मैं मौलाना सोहेल बोल रहा हूँ। जी मौलाना साहब। मदरसा रशीदिया में पढ़ाता हूँ जी सामने। जी जी, जानता हूँ मेरा माशाल्लाह। बच्चा है सालिम। मेरी राय ये है कि जो आपने अभी ये जैसे जो भेजते हैं ना हिस्ट्री के वगैरह सवाल गूगल के जरिए से, जी ये उसमें ABC ऑप्शन दिया जावे और इस तरीके से एग्जाम लिया जावे ताकि बच्चा कुछ गूगल के ऊपर सर्च करके भी मुताला करके भी अगर वो जवाब देना चाहे तो जवाब दे सके। उसमें क्या है, आसानी भी होती है और उसका मुताले का ज़ौक भी बढ़ता है बच्चे का। बहुत अच्छी ये रहे। मेरी राय है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हाँ, भी ये बहुत बहुत अच्छा है अच्छा है। कि फौरन रिजल्ट जो है वो बच्चे के सामने आ जाता है और उसमें कोई मतलब हाँ। चीटिंग करने की जरूरत नहीं। और बल्कि मैं इसमें और एक इसमें ये करूँगा कि इसमें टाइम लिमिट दे दूंगा कि एक आंसर के जी लिए इतना वक्त, ताकि बच्चा किसी भी किस्म की मतलब कहीं से कॉपी ना करे। जी जी, बहुत और मैं अच्छा। एक ही मतलब रिस्पांस दूंगा उसको, ताकि बच्चा एक मतलब सबमिट करने के बाद दूसरी मरतबा सबमिट न कर सके। मेरे जहन सर में भी इसमें ये मेरी एक राय और है जी जी सर। जी जी इसमें मेरी एक राय हो कि एक एग्जाम हर हफ्तावारी हो। जैसे संडे का दिन होता है तो संडे के दिन जो भी एक पेपर हो या 2-3 पेपर हो उनका एक संडे के दिन दे दिया जाए। जैसे एक हफ्ता आपने जो भी पढ़ाया हो उसका एक छोटा सा एग्जाम, जैसे एक सवाल आपने ज्योमेट्री में से ले लिया, एक सवाल आपने अलजेब्रा में से ले लिया, एक सवाल आपने साइंस में से ले लिया, सिर्फ एक सवाल का एक हफ्ते में एक वो एग्जाम हो, जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आता है। बेहतर, अच्छी राय माशाल्लाह। और किसी के जहन में कोई एग्जाम के नुक्ते नजर से? अभी हमारी स्कूल की मीटिंग भी नहीं चला, उसमें भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ऐसे तो हो चुकी है और भी मीटिंग, आज की मीटिंग के बाद एक मीटिंग और होनी है। अयान के पेरेंट्स है, मुबीन के पेरेंट्स है, माशाल्लाह सभी फिक्रमंद। हमारी स्कूल के जो माशाल्लाह हमारी क्लास के जो पेरेंट्स हैं माशाल्लाह बहुत मुतफक्किर है, तो अच्छी अच्छी राय माशाल्लाह आ रही है। मौलाना सोहेल साहब की बहुत अच्छी राय थी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी मैं अयान के वालिद बोल रहा हूँ हाँ अभी। जी जी
बोलिए माशाल्लाह। जी बोलिए ना। गेस्ट શું બાયડ્યો પડી યસ બિંદાસ ને नहीं मैं बोलिए बोलिए ना। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम की क्या ये जब शुरुआत कैसे होगी और क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा या आगे कुछ ऐसा फ्यूचर में क्लास में स्कूल वगैरह ओपन हो जाएगी जैसा है? सितंबर के महीने में स्कूल के ताल्लुक से ऐसी खबरें आ रही थी कि ओपन हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन से कुछ न्यूज़ एक गर्दिश कर रही है कि शायद स्कूल ओपन होते होते दिसंबर आ जाए। खैर लेकिन फिर भी बड़ी क्लास की जल्दी ही स्कूल शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी हमको उम्मीद है। तो अभी फिलहाल चूंकि ये अगस्त के महीने में एक टेस्ट होता है स्कूल के अंदर, तो उस टेस्ट को कैसा लिया जाए? लेकिन सर काफी कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, मेरा आया नहीं है, जी जो अभी एक्चुअली दिखने में थोड़ा तो दिक्कत हो जाती है एक मरतबा, वो हाँ वो और जो है तो उसकी जो पढ़ाई है वो भी थोड़ी सी वीक हो रही है ऑनलाइन के। और बाद में हम लोग तो माशाल्लाह ध्यान वगैरह रख ही रहे हैं, ध्यान जो दे रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा फिक्रमंद एग्ज़ाम को लेकर के कि अगले एग्ज़ाम होगा तो कैसा होगा। ये हाँ ये खाली इसके फ्यूचर का नहीं है, सभी स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए जी। चलिए हमारी मीटिंग का यही एक है। जी हमारी मीटिंग का एक तो पॉइंट ये था, अब चूंकि बहुत कम है, अब एक दूसरा पॉइंट है। इंशाल्लाह आप लोग की जो राय है बहुत बेहतर राय है, इंशाल्लाह हम हत्तल इम्कान हर राय की एहतराम करते हैं और उसको करें। अच्छा दूसरा भी ये है कि क्या आप हमारी इस ऑनलाइन तालीम से मुतमईन है, जितनी हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है, या और इसके अंदर क्या तरीके अपनाए जाए? थोड़ा मुख्तसर 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है हमारे पास। मुतमईन तो है, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी मुतमईन तो है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा और भी मैं अपना चाहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा सा वक्त और इनको दिया जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो मुझे लगता नहीं है कि ये लोग अपने आप पर भी या ऑनलाइन पर भी ध्यान वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि बगैर उस्ताद के तो मुझे लगता नहीं है ये लोग सही ढंग से तो पढ़ रहे होंगे स्टडी। जी हाँ, मसला जो है ऑनलाइन से तो काबू में नहीं आ सकता है। खैर अभी वक्त बहुत कम बचा हुआ है। मैं आप तमाम पेरेंट्स का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने जो है अपने कीमती औकात को हमारी मीटिंग के लिए सर्व किया। जी सर एक छोटी सी चीज है कि जैसे